So hello students, welcome to DCA. So today you have your AFCAT exam, AFCAT II 2019 exam. Right? दो शिफ्ट में थे आप, we had in two shift. तो 2 घंटा पहले आप जाते हो, काफ़ी वो बायोमेट्रिक्स वगैरह में टाइम लगता है. It's quite frustrating, irritating as well. Many of the candidates complained about the hangout of the system, that is technical lag. तो CDEC है, you know that कि ये CAT वाली एजेंसी तो है नहीं, right? कैट के पेपर में ऐसा नहीं होता, या जनरली अगर आप अच्छे एमबीए एग्जाम की बात करो तो इंडिया में जो सीडेक वाले टेंडर लेते हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है. यार एनीवे दिस कीप्स ऑन गोइंग. काफ़ी बच्चों ने बोला, दैट्स व्हाई आई सेड टॉकिंग अबाउट द पेपर, राइट, एज पर द फीडबैक, बिकॉज पेपर तो एक्चुअली हमारे पास है नहीं, बिकॉज दे डोंट गिव यू, इट्स एन ऑनलाइन एग्जाम. सो अगर आप जनरल पेपर की बात करें, द सेक्शंस इंग्लिश as per the feedback of the average candidates, मतलब मैं majority crowd की बात कर रहा हूँ, which we talked at the center, they said that some words were quite tough, maybe English is slightly on the tougher note in comparison to the conventional one, because इसमें कोई बहुत broad syllabus नहीं होता, तो word तो कोई भी पूछा जा सकता है. Second one, talking about the reasoning and maths, they were quite easier, simple, straightforward, because although the syllabus is quite small in terms of maths, काफ़ी limited से आपके पार्ट होते हैं. रीजनिंग इज ऑल्सो नॉट सो ट्रिकी एक्चुअली. वो हिट करने वाली बात है, if you practice enough you will get it easily, right? So the last but not the least, which everyone wants to discuss, everyone wants to know, is GK portion. I have not used the word current affair because there is nothing current in this, right? तो current affairs is actually कि आप 5-6 महीने में जो चीज़ें हुई हो, यहाँ तो 500 साल पुराने से लेकर के 5 साल पुराने तक के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो you cannot prepare for that. Right? If you ask me one question, how to prepare current affair for AFCAT, so I will say there is nothing called as current affairs in AFCAT. You just go with whatever you know, right? अगर आपको आना होगा तो वैसे भी आ जाएगा, otherwise you can't do. The kind of question, the pathetic questions they ask, ऐसे कुछ भी उल्टा सीधा कभी कभार पूछ लेंगे जो शायद आपने हो सकता है क्लास 4th में सुना हो सकता है कभी जिंदगी में भी ना सुना हो. You cannot prepare, right? It's called as whatever. If you want के still कुछ पढ़ना चाहते हैं, that is lucent type question. तो lucent type question मतलब one word मिल गया तो सही, नहीं तो छोड़ो आगे बढ़ो. This is the thing. So that's quite incompatible. I had been already talking about कि CDS और AFCAT दोनों में आप ऑफिसर इंटर लेते हो, बट जो AFCAT का लेवल है वो to be honest it's all रेलवे ग्रुप डी और SSC क्लर्क वाला लेवल. इससे ज़्यादा उसका कुछ है नहीं. तो I don't know why there is so much difference between the level of the exam while both are officer entry. Anyhow, coming back to the point, the GK questions. So I had some questions collected, of course based on the memory of the students who they told us कि okay sir ये question आया था, तो we have compiled. You can get this PDF. This WhatsApp at 7710548960. The office will send you the PDF of this question along with the answer. Right? That is I am talking about AFCAT day 1, 24 अगस्त को जो day 1 पेपर हुआ 2 slots में, उसके कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर मेजॉरिटी है, राइट? सो अराउंड 40 के आसपास है, which we are going to discuss in one words. जैसे how many overs are there in first power play? So T20 का पूछा था तो that was 6, right? अगर ODI पूछता तो 10 होता, but it was T20. Author of the Life of Pi, that is Jan Martel, right? Who is considered as father of Indian revolutionary ideas. अगर आप तुक्का मारते तो सही हो जाता, वो बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक. Who was the first Governor General of Free India? तो राजगोपालाचारी जी. Which line passes through Australian subcontinent? So Australian subcontinent आप देख लो कि इस साइड लाइक करता है, साउदर्न में तो that is of course, तो साउदर्न वाला जो ऑप्शन आपके पास कैप्रिकॉर्न नहीं था. Brackman of women's cricket, tough question, that is Betty Wilson, Australia. Which female athlete, again very tough question, I don't know how much you have remember this. Which female athlete won Commonwealth gold में किसको गोल्ड मिला था? 48 किलोग्राम कैटेगरी में. अब बताओ ये कौन याद रखेगा को कितने किलो कैटेगरी में किसको गोल्ड मिला? ये तो आत्मा और परमात्मा दो ही लोग जानते हैं. अगर आपको पता है तो आप बहुत तेज होंगे, राइट? संचिता खुमचंद. So this is what I googled out, right? Which satellite is being launched by NASA to rover mission? Maybe आप guess कर सकते थे. I don't know what was in the actually options because बच्चों ने option 4 तो नहीं बताया. So this is Mars 2020 rover mission. अब जो भी आपके पास वहाँ ऑप्शन होगा इससे रिलेटेड होगा. In which Upanishad is सत्यमेव जयते mentioned? तो ये कॉमन क्वेश्चन है, पहले भी बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं. तो दैट इज मुंडक उपनिषद जो है उसमें है. तो ये आई थिंक वेरियस एग्जाम, आई थिंक सिविल सर्विस में भी काफी पहले पूछा जा चुका है. कांट इज रिलेटेड, CANT, देयर इज अ टर्म व्हिच इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट्स? ये टफ क्वेश्चन है. आई डोंट नो, जो शायद कबड्डी खेलते हैं उन्होंने सुना. कबड्डी मैंने भी खेली बट मुझे तो नहीं पता बिकॉज हिंदी में खेली, अंग्रेजी में तो नहीं खेली. कांट क्या होता है?
right? So this is related to kabaddi. There is one reasoning question: albatross, penguin, ostrich, pelican. Which one is odd one out? So देखो, albatross is a sea bird, in fact a very large bird. Penguin is also found near marine water resources. Pelican is also, fish वगैरह के भी रहते हैं. तो ostrich is something which is not found along the water bodies or sea क्या होगा? Sea bird नहीं. तो ostrich is odd one out. Next, winner of UEFA 2019 football league, Liverpool. ये क्वेश्चन करंट अफेयर बुकलेट में भी था, आई एम श्योर. राइटर ऑफ पद्मावत वो मूवी डिस्प्यूट में थी. अब बताओ, ये करंट थोड़ी है, सुपर करंट भी नहीं है, तो एंशिएंट करंट है, राम जाने कौन सा करंट है. मलिक मोहम्मद जायसी. Name the ISRO space program with the highest number of satellite. So the launch of PSLV C37 satellite. I think 104 satellites were there, out of which 101 was from the other countries. Another thing that कि ये कोई करंट अफेयर नहीं है. अगर आपको लगा कि 6 महीने के करंट अफेयर, ऐसा कुछ नहीं है. फरवरी 2017 की बात, राइट? पता नहीं कितना पुराना सोचते हो. मुझे लगता है कि 2023 का पेपर वो अभी से डिजाइन कर रहे होंगे ताकि पेपर ऐसा ही कुछ करे. उनके लिए करंट 3 साल पुराना होता है. तो आप अब 2023, मतलब जो बच्चे 10वीं में होंगे वो अभी का अखबार पढ़ ले, करंट अफेयर, शायद आपको AFCAT 2023 में काम आएगा, राइट? आई डोंट नो व्हाट दे वांट. ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग्वेदा. शिप और द बोट मेड अप ऑफ व्हिच मेटल. देखो, जो चीज पानी में है, वी वांट कि मेटल शुड बी कोरोजन फ्री, मतलब वो अपने ऊपर एक लेयर बना दे, सो दैट कि जैसे एल्युमिनियम कैन फॉर्म लेयर अबव इट. निकल कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए प्रिवेंटिव. टिन कैन आल्सो बी यूज्ड. Now I don't know what was actually in the option. If it is nickel, I will go for nickel. Tin भी use होता है, SnO2 एक layer बन जाती है. तो depending upon the option, tin, aluminium and nickel, these 3 are the possible answer. जो भी आपको लगे आंसर ऑप्शन में था, you could have gone for that. किसी को याद है क्या ऑप्शन था? निकल, tin था क्या? tin was in option नहीं. तो अगर निकल, aluminium भी होता है, because aluminium also forms a passive layer of Al2O3. नाउ कहोगे स्टेनलेस स्टील भी होता है, तो आजकल वो भी यूज करते हैं बिकॉज़ उसमें कार्बन कंटेंट ना के बराबर है. तो अब ऑप्शन होना चाहिए क्या है, तो मेरे पास 4 ऑप्शन तो है नहीं जो कि मैं कहूँ ये इसका एग्जैक्ट ये है. नेक्स्ट, बोलिविया, कैपिटल ऑफ बोलिविया. नाउ इसके 2 पॉसिबल आंसर है डिपेंडिंग अपॉन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल और दूसरा की जो चीफ कैपिटल है. सो द वन ऑफ देम इज सुसरे, SUCRE. थर्ड सेकंड वन इज ला पाज इज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल. अब जो भी ऑप्शन में होगा कोई एक ही होगा, आप चेक कर लेना क्या था. The author of Argumentative Indian, Amar Singh, ये easy है actually, you could have done that. Sardar Singh is related to hockey, right? काफी famous है actually player, तो ये आपको याद होगा मेरे ख्याल से. Designer of Taj Mahal, ये तो बहुत भयानक question है, right? So उस्ताद लाहौरी, right? सारे नाम मुस्लिम के ही होंगे तो आपको guess करने की जरूरत नहीं थी वैसे. First Wimbledon champion, right? ये तो जो इंडिया में जो टेनिस चैंपियन होंगे, राइट? उनको भी पता नहीं होगा फर्स्ट विंबलडन चैंपियन कौन थे. दैट इज मॉड वॉटसन, राइट? द ओनली थिंग यू कैन डू इज गूगल, राइट? अगर आपको याद है, यू आर ग्रेट. ओके. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इजी क्वेश्चन. 1526 में वो लोधी वाला जो अटैक था आपका, बाबर अल लोधी, ये तो आप कर सकते थे. ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, रिसेंट में से आपको ऑनलाइन मिलेंगे, राइट? दैट इज इजी वन, दादा भाई नौरोजी. 5000 किलोमीटर सरफेस टू सरफेस मिसाइल बाय DRDO, अग्नि 5. ये भी 1 साल पुराना है, 1 साल क्या 1.5 साल पुराना मुझे लगता है. एंड ओलंपिक 2024 वेन्यू, तो दैट इज पेरिस. तो स्पोर्ट्स वाले से ना वो कम से कम 4-5 क्वेश्चन जनरली AFCAT का ट्रेंड रहा है कि AFCAट रिलेटेड स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते रहते हैं. तो पेरिस. कमलजीत सिंधु एथलीट, इट्स एक्चुअली कमलजीत, स्पेलिंग यहाँ गलत है, कमलजीत. ओजोन डिप्लीशन, द इजीएस्ट वन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका, ऑप्शन देख के शायद आप कर सकते हो, तो माउंट किलिमंजारो, वो राइनो वाले इलाके में होता है, तंजानिया में वगैरह क्या. 29th इज गेटवे ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड इन व्हिच स्टाइल. अब बताओ, आम आदमी को शायद ये नहीं पता हो गेटवे ऑफ इंडिया वाज डिजाइन्ड और बिल्ट इन ऑर्डर टू कॉमेमोरेट, मतलब उनके याद में बुलाया गया था रॉयल के जो किंग आए थे, क्वीन आए थे, उनके लिए, राइट? अब ये कौन से स्टाइल में बना गया, ये तो इट्स रेयर, आई डोंट नो कि कौन से कोचिंग में कहाँ ये पढ़ाया जाता है, राइट? सो ये तो कौन सा अफेयर है वो आप ही जान लो कौन सा अफेयर है. करंट अफेयर तो कतई नहीं है, राइट? सो इट वाज इंडो-सैरासेनिक, राइट? सो दिस इंडो-सैरासेनिक डिजाइन विद मुस्लिम इन्फ्लुएंस बाय द जॉर्ज विटेट. सो जिसने डिजाइन किया था जॉर्ज विटेट, स्टार्टेड इन 1913 टू कमेमोरेट, उनको याद करने के लिए, राइट? रेडियोएक्टिव मेटल यूज्ड इन टू ट्रीट कैंसर. नाउ अब उसमें कुछ बच्चे कह रहे थे कि आयोडीन वाज नॉट इन द ऑप्शन, राइट? सीजियम वाज नॉट,
Cobalt 60 was not in the option. As they said, as per the option, they have confused between tantalum and the platinum. So I would rather go for platinum because NCBI website mentions this. NC National Center of Biological Research, Bangalore, that is the biggest जो cancer research institute है actually. तो प्लैटिनम I will go for that. INA founder, तो इसमें बोस साहब नहीं होंगे, कैप्टन मोहन सिंह was that, right? सिंगापुर 1942. Which leader? उपनिषद आइडिया, तो आइडिया ऑफ उपनिषद में क्या क्या है? ब्रह्म और आत्मा, ब्रह्मात्मा की बात करते हैं. अब ऑप्शन क्या था आप देख लेना. Who demanded Pakistan? Now I am not clear कि what exactly was it in the question, because बच्चे ने सिर्फ इतना बताया कि पाकिस्तान किसने डिमांड किया. तो जिन्ना हो सकते हैं ऑप्शन, ऑफ कोर्स बेटर तो वही चांस है. दूसरा कि कौन से लाहौर रेजोल्यूशन 1940 में किसने पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था? सो दैट मींस जफरुल खान, मोहम्मद जफरुल खान. अब इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा. आई एम श्योर कि जिन्ना ही होंगे, राइट? सो अगर आपका ऑप्शन जिन्ना हो तो यू शुड गो फॉर दैट. अदरवाइज लाहौर रेजोल्यूशन की बात हो रही होगी तो जफरुल खान होंगे. सो दिस इज ऑल 35 क्वेश्चन व्हिच वी रिसीव्ड फ्रॉम द मेमोरी, राइट? सो ओवरऑल आई वुड लाइक टू से जीके वाज स्लाइटली टफ, बट ओवरऑल बात करते हैं कि 200 में से अगर आपने 57 प्लस भी करेक्ट किया तो दैट इज गुड इनफ, बिकॉज इट्स रेयर दैट कि कोई बच्चा 25 करंट अफेयर्स में से 10-12 आता हो. बहुत मुश्किल है. कुछ रिटन ट्रायल से तो हो ही सकते हैं, उसको हम अवॉइड करते हैं. बट इवन इफ यू आर गेटिंग लेट्स सपोज 156, 157, 158, दैट इज गुड इनफ ऑन द बेसिस ऑफ डे 1. आई एम श्योर दैट कि डे 2 पे भी ऐसा ही रहेगा, बिकॉज जब भी ऐसे शिफ्ट में एग्जाम होते हैं तो देयर इज ए रिजर्व रिपोजिटरी ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लेवल. उसी से फिर एआई यूज करके वो क्वेश्चंस रखते हैं, राइट? सो यू डोंट वरी, इसमें से कोई क्वेश्चन रिपीट तो होगा नहीं. तो आपको देख करके या वीडियो सुन करके या क्वेश्चन पढ़ करके अलग अलग इंस्टाग्राम फेसबुक पेजों पे एक तसल्ली मिलती है कि हाँ मैं भी उन्हीं आम आदमी की भीड़ में हूँ जिनको कुछ नहीं आता है. एफकेट क्वेश्चन का, बिकॉज इसमें जो आता है यू डोंट वरी, किसी को नहीं आता. 25 में 10 आता है तो आप ठीक ठाक बच्चे हैं, राइट? डोंट वरी. कॉन्सेप्ट जितना फंडामेंटल कंसेप्चुअल ये सब यूपीएससी में काम आएगा, यहाँ कुछ भी नहीं काम आएगा. यहाँ तो ये भी पूछ सकते हैं कि जो मकड़ी पाई गई उसके कितने टांग थे, राइट? सो डोंट वरी अबाउट सच क्वेश्चन. जो आता है जितना पढ़ा है जाके पेपर दो, इट्स गुड इनफ टू क्लियर द एग्जाम. थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स.